Good morning students. In previous video we discussed about the journey of Jana to Janpad and from Janpad to Mahajanpad. As Mahajanpad were declining and big dynasties were following monarchy system. Most of them were following monarchy system. In these dynasties the Mauryan Empire amongst them was very vast, famous, strong, systematic and no doubt prosperous. There were many other empires also other than Mauryan Empire such as Shung, Satvahan, Gupta, Vardhan, Pal, Rashtrakoot, Pratihar, Chol, Pallav, Chalukya, etc. Let us discuss about Mauryan Empire first. Among previous discussed 16 Mahajanpad. We have discussed about 16 Mahajanpad na? So Magad was also amongst them. Magad was earlier Mahajanpad. It occupied almost all northern Indian region gradually. So when and how the Mauryan Empire established, we will discuss about this Mauryan Empire. Mauryan dynasty 326 to 180 BC. Magad was among the 16 Mahajanpad. Its rise into an empire happened during the rule of हर्यक डायनेस्टी. हर्यक डायनेस्टी के टाइम पे ये शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे मौर्यन डायनेस्टी ने पूरे नॉर्दर्न इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था. कैसे शुरू हुआ? तो अराउंड 326 BC there was a ruler of Nand dynasty named as Dhananand. He was the ruler of Magad. Undoubtedly, he was not only brave but he also has a big army and capability to rule as well. But he was very extravagant king. बहुत ज़्यादा विलासी था, अपना मतलब सत्ता के नशे में चूर जिसे कहते हैं कि उसको बहुत घमंड था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे पास इतनी सेना है, बहुत ऐशो आराम का भी आदी था. तो अपने उस ऐशो आराम वाले जीवन को पूरा बिताने के लिए उसको टैक्सेस के रूप में अपनी खजाने को भरना होता था. तो वो जनता पे बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर रखा था उसने. फॉर हिज कम्फर्ट ही हैज़ इम्पोज टैक्सेस ऑन पब्लिक. ऑफ कोर्स हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन विल मीट देयर एक्सपेंसेस. ठीक है, टैक्सेस तो देने ही होते हैं जनता को, क्योंकि वरना फिर वो जो गवर्नमेंट है अपने खर्चे को कैसे पूरा करेगी. तो जनता जब टैक्स देती है तभी लेते हैं, लेकिन वो एक वाजिब तरीके से लेना. लेकिन वो हर किसी चीज़ का टैक्स चाहे कोई दे सके नहीं दे सके, वो हर तरह से टैक्स लेना चाहता था. But if some taxes are imposed unnecessarily, then it would be a burden on public. So the public of Magad was also suffering from the tyranny rule of the Dhananand. वो चाहते थे कि ये जो धनानंद है वो उसकी जगह कोई ऐसा केपेबल इंसान आए जो कि उनको इससे भी छुटकारा दिला सके और एक अच्छा रूलर बन के मगध पे राज करे. At that time, Alexander was also attacking from north-western side. जो हिमालयन साइड से और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ वहाँ से होता हुआ अलेक्जेंडर भी इंडिया पे कंट्रोल करने आना चाह रहा था और बार बार अटैक कर रहा था उन जगहों पे. तो वॉर से भी जनता परेशान हो गई थी, टैक्सेस से भी परेशान हो गई थी, तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी. People were very frustrated from wars and unnecessary tax burden. They were waiting for such person who could resolve the external attack and he could unite India as whole. अखंड भारत, पूरा बिना खंड किए हुए भारत. At that time, the disciple of चाणक्य को हम आचार्य विष्णुगुप्त
और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा, उसे अपना शिष्य बनाया और फिर उसको पॉलिटिकल कैरियर के लिए प्रिपेयर भी किया। युद्ध में क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, किस तरह से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह होना चाहिए, इस तरह की कई चीज़ें उन्होंने, राजनीति के गुण, ये सारी चीज़ें चंद्रगुप्त मौर्य ने इन चाणक्य से ही सीखी। इसलिए ये कि चंद्रगुप्त मौर्य इतना अच्छा राजा किस तरह से हुआ, ये सब उनके गुरु चाणक्य के ही मेहनत का परिणाम था। तो अब हम उन चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे जो मौर्यन किंगडम की जिन्होंने स्थापना की। ही एस्टेब्लिश्ड मौर्यन किंगडम एंड ruled over India, a vast pan-regional state of Magad. Now Chandragupta Maurya. Now we'll discuss about Chandragupta Maurya. His 322 BC to 298 BC before Christ. At the age of 25, with the help of his guru Chanakya, or you can say Acharya Vishnugupta or Kautilya, he defeated the last ruler of Nanda dynasty, Dhananand. He founded the Mauryan Empire. He expanded his empire to establish a pan-Indian empire. अखिल भारत की स्थापना करने के लिए उन्होंने कोशिश की। वो चाहते थे पूरा भारत अखंड रहे और एक छत्र राज्य करे। In 305 BC, he defeated contemporary Greek ruler Seleucus Nicator. Seleucus Nicator, earlier he was a commander under Alexander army, but when Seleucus Nicator occupied some Indian state, then Alexander hand over the charge to Seleucus Nicator, and then Seleucus Nicator ruled over those areas. So he became ruler, but Chandragupta Maurya defeated Seleucus Nicator, and a treaty was made between them. ट्रीटी क्या थी, संधि उन दोनों के बीच में क्या समझौते हुए कि उन्होंने कुछ एरिया ईस्टर्न अफ़गानिस्तान का, बलूचिस्तान का और कुछ वेस्ट ऑफ इंडस रिवर एरिया, इंडस रिवर का कुछ एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई, मतलब अपने अंडर में ले लिया। और फिर 500 एलिफेंट्स के बदले में ये सारी चीज़ें उन्होंने उसको दे दी। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने 500 एलिफेंट्स लेकर के और ईस्टर्न अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और इंडस रिवर का वेस्टर्न साइड का एरिया पूरा चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। उसके अलावा सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी, he married his daughter with Chandragupta and appointed Megasthenes as ambassador in the court of Chandragupta. मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के कोर्ट में, दरबार में अपना राजदूत बना दिया। एरियाज़ ऑफ काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य एंड कश्मीर वर पार्ट ऑफ ह्यूज एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तमिल बुक्स Ahananuru and Murananuru show that Chandragupta Maurya also attacked South India. चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ में भी अपना साम्राज्य के लिए अटैक किया था, बढ़ाने के लिए साम्राज्य को। When he became old, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़े होते चले गए, उन्होंने जैनिज़्म की शरण ले ली और दीक्षा ले ली। किससे? भद्रबाहु से। And in 298 BC, चंद्रगुप्त left for heavenly abode. अपना शरीर उन्होंने त्याग दिया और उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में, जो कि अभी मैसूर में है। ये इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने
अपना पूरा साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया। फिर उनके बेटे आए और उन्होंने गद्दी संभाली। चंद्रगुप्त मौर्य was succeeded by his son Bindusar. The Greek scholar referred to him as Amitrochets. He is mentioned as Bhadrasar in Vayu Puran and as सिंह सेना इन जैन टेक्स्ट। जैन जो टेक्स्ट हैं कुछ मिले हैं बुक्स, उसमें उनका नाम बिंदुसार का नाम सिंह सेन है। वायु पुराण है उनमें उनका नाम भद्रसार है। और जो ग्रीक विद्वान या जिन्होंने उनकी बुक्स वगैरह लिखी ग्रीक, उन्होंने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स भी कहा। He conquered and assimilated even South Indian areas in the Magadha Empire. मगध एम्पायर में उन्होंने साउथ इंडियन थोड़े एरियाज़ को भी मिला लिया। उन्होंने युद्ध करके, वो भी उतने ही बहादुर थे जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने उनकी जो पॉलिटिकल कैरियर था सारा उन्होंने उसी तरह से फॉलो किया जिस तरह अपने मतलब पिता की तरह उन्होंने ये सारी नीतियाँ अपनाई। युद्ध की नीतियाँ हों, चाहे संधि की नीतियाँ हों, ट्रीटीज़ हों किसी तरह की, वो सब उन्होंने उनको फॉलो किया और चाणक्य की नीतियों को अपनाया। अकॉर्डिंग टू दिव्यदान देयर वर 2 इंस्टेंसेस ऑफ रिबेलियन। बगावत के 2 घटनाएं हुई तक्षशिला में बिंदुसार के शासनकाल के समय, बिंदुसार रायन। तो उन्होंने क्या, पहले अशोक को भेजा और फिर बाद में सुशीन को भी भेजा ताकि इस रिबेलियन को ख़त्म किया जा सके। द ग्रीक रूलर एंटियोकस फर्स्ट had appointed Dimachus as his ambassador in the court of Bindusar. According to Pliny, Philadelphus, emperor of Egypt, कहाँ के राजा थे वो? फिलाडेल्फस इजिप्ट के राजा थे। उन्होंने भी डायनाक्शियस को अपना एम्बेसडर बना के बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो ऐसे बाहर से कई राजाओं ने बिंदुसार के दरबार में अपने अपने राजदूतों को भेजा, एम्बेसडर्स को भेजा, ताकि, और इसका मतलब ये भी है कि यानी कि ये जो राजा थे ये बिंदुसार की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे, यानी वो उनकी बात को मान रहे थे, उनके अंडर में काम कर रहे थे, अंडर उनके रूल में आ रहे थे। इस तरह से बिंदुसार ने भी अपने पिता की ही तरह अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, विस्तार दिया। आफ्टर बिंदुसार द थ्रोन वाज सक्सीडेड बाय अशोका। वी विल डिस्कस अबाउट अशोका द ग्रेट in next video. Thank you.